حاضر ہو گیا ہوں. میں اب بلا تاخیر، چونکہ لوکل کے سارے علماء ہیں، ہم لوگ تو یہیں کے ہیں اور سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج یہ خوش قسمتی ہے بہت بڑی، یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اس چھوٹے سے پروگرام میں حضرت کی تشریف آوری ہو گئی. یہ مخدوم پاک کا فیضان کرم، یہ مخدوم پاک کا یہ فیضان کرم ہے کہ حضرت نے لبیک کہا اور اس دعوت کو قبول فرمایا. ہم سب حضرت کے لیے بہت ممنون و مشکور ہیں کہ حضرت نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے، اور میں حضرت سے دعا کروں گا، حضرت سے عرض کروں گا کہ ہم لوگوں کے لیے حضور مخدوم پاک کے آستانہ کرم میں ضرور دعا فرمائیں اور ہم سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں. اب آئیے میں بلا تاخیر میں اس عظیم ہستی کو آپ حضرات کے سامنے روبرو کرنے جا رہا ہوں جس کے آپ شدت سے منتظر ہیں اور تقریباً 12:30 بج چکے ہیں، جس کی آمد کا آپ شدید انتظار کر رہے تھے. میں ان شعر کے ساتھ کچھ ایسی بے خودی تھی آپ کے انتظار میں، کچھ ایسی بے خودی تھی آپ کے انتظار میں، تصویر بن چکا تھا آپ کے انتظار میں، تصویر بن چکا تھا آپ کے انتظار میں. آہٹ پہ کان در پہ نظر دل میں اشتیاق، آہٹ پہ کان در پہ نظر دل میں اشتیاق، آنکھوں کے اشک سوکھ چکے تھے آپ کے انتظار میں. اب میں بلا تاخیر حضرت سیدی و مرشدی حضرت مولانا انعام الحق صاحب اشرفی قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں حضرت سے مخلصانہ اپیل کروں گا، گزارش کروں گا، عرض کروں گا کہ حضرت یہ بے چین نظروں کو تسکین دیں. حضرت کے آنے سے قبل آئیے زوردار نعرہ تکبیر حضرت کا سواگت کریں. نعرہ تکبیر! نہیں، اس طرح سے کنجوسی سے کام نہیں چلے گا. یہ بہت بڑی عظیم ہستی ہے، سوچ لیجیے یہ آپ کا ہم سب کا قسمت مقدر کا ستارہ آنکھ پر ہے کہ حضرت تشریف لائے ہیں، سب جان لیں، اور یہ پروگرام کامیاب ہونے کی دلیل ہے. نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! جشن عید میلاد النبی! نعرہ تکبیر! نوجوانان فسیہ ڈنگال! حضرت تشریف لائے. جملہ افراد بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج آپ لوگوں نے اپنے آقا کی محفل کو محبت کے ساتھ سجایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو نور سے سجا دے، دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا، سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا. جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے جب میرے سرکار کا روضہ ہوگا، سامنے جب میرے سرکار کا روضہ ہوگا. اور یہ شعر جتنے بھائی بڑی محنت سے اپنے آقا کی محفل کو سجایا ہے، اتنے علماء کرام کو آپ نے بلا کر خدمت کی ہے، ان کی دعائیں لی آپ نے، تو آپ لوگوں کی طرف سے یہ شعر میں اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ زور سے بول دیجیے سبحان اللہ. اب جن کو جانا تھا وہ چلے گئے، جن کو رہنا ہے وہ رہ گئے. اب جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے
से हट नहीं सकते, मैं इंशाअल्लाह, बोलिए नहीं जाएंगे, चाहे रात खत्म क्यों नहीं हो जाए इंशाअल्लाह ताला। एक रात को अपने नबी के नाम पर कुर्बान कर ही सकते हैं। आप जनाब सरफराज और शेर जिसको कहते हैं, बहुत आप लोगों की बड़ी तारीफ की है कि हज़रत बड़ी मोहब्बत से अपनी आका की महफिल को सजाया है। दुआ कर दी अल्लाह ताला सबके दिल को नूर से सजा दे। सुभान अल्लाह। मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ, हमारे उलमाए किराम भी दुआ फरमाते हैं कि जो जितना अच्छा काम किया है आप, इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी आप मकबूल हैं, अल्लाह की बारगाह में भी आप मकबूल हैं। सुभान अल्लाह। तो ये शेर पेश करने जा रहा हूँ कि किस लिए फिक्र करें हश्र के दिन क्या होगा, सामने उनके जो कुछ होगा वो अच्छा होगा। जज्बे इश्क बता वक्त वो कैसा होगा, सामने जब मेरे सरकार का रोजा होगा और उनके होते हुए जुल्मत का तसव्वुर कैसा, कब्र में मेरी उजाला ही उजाला होगा, कब्र में मेरी उजाला ही उजाला होगा। नफ्सी नफ्सी के सिवा कुछ न सुझाई देगा, नफ्सी नफ्सी के सिवा कुछ न सुझाई देगा। रब्बे हबली की सदा कोई लगाता होगा, रब्बे हबली की सदा कोई लगाता होगा। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे नबी के लब पर अना लहा होगा, मेरे नबी के लब पर अना लहा होगा। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। सुभान अल्लाह। मैं हुजूर सरकार मौलाना शाहबाज मोहम्मद मखदूम शाहबाज मोहम्मद अशफरवाल रहमतुल्लाह अलैह के तैयार कराने वाला बड़ा गुनहगार सियाकार, और उस तैयार में उन्हीं के ख़ानदान में हज़रत मखदूम सुल्तानुल हिंद सरकार जिया शहबाजी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी हस्ती। जब मैं अजमेर शरीफ गया था, और अजमेर शरीफ आपकी दुआ से हर साल जाता, हमारे हजरत एक मरतबा हुजूर जिया शहबाजी गए, जानते बहुत बड़े बड़े मौलाना और सबकी तकरीर हो रही, कव्वाली हो रही, महफिल हो रही। हजरत का जो मौलाना जिया शहबाजी मौलाना इश्तियाक आलम भागलपुरी की जब तकरीर हुई तो वहाँ के लोग अश अश करते थे, ये बंदा कहाँ का रहने वाला है, बिहार का नहीं रहने वाला है, लगता है किसी बुजुर्ग खानदान का बच्चा है जो अपने कमालात के जलवे को बिखेर रहा है। सुभान अल्लाह। उन्हीं का दो तीन शेर हजरत मैं पेश कर रहा हूँ, आप जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सबकी तरफ से। और ये दुआ या जुमला, चूंकि रात बीतती जा रही है और ये दुआ की कबूलियत का वक्त है, मैं अब दुआ करूँगा आपके लिए, कुछ तकरीर करूँगा, कुछ दुआ करूँगा, और जब आप कल सुबह सोएंगे उसके बाद जब उठेंगे इस दुआ का फैज़ अपने ऊपर आप महसूस फरमाएंगे इंशाअल्लाह। ये शेर समाज फरमाएंगे, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में। हज़रत दुआ आप लोग के फरमा रहे थे, हम लोग आज कहाँ ये गोड्डा के सरजमीन पर हैं। महल्ले का नाम तो आपको सुना चुके हैं, आप जानते हैं महल्ले का क्या नाम है। आज की रात यहाँ आपकी गुजर रही है, कल कहाँ गुजरेगी गुजरी है, मगर सब मिलके दुआ कर दीजिए कि हम सब की एक ऐसी रात हो कि हम लोग मेरे सरकार का रौज़ा हो और हम लोग मदीने में मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए हर मुसलमान को दुआ करनी चाहिए, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। और अल्लाह से मांगे तो ये जरूर मांगे कि मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो, जिंदगी मक्के में हो और तैबा में मरना मांगो, बाद मरने के महक उठे लहद के गोशे, इसलिए रब से मोहम्मद का पसीना मांगो। अल्लाह करे आपको मक्के मदीना
अल्लाह आपको हाजी बना दे, कहिए आमीन। और जिंदगी में सबसे अगर बड़ी नेमत है तो इंसान हुजूर के रोज़े की ज़ियारत कर ले, सुबह इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं। जब मैं हज के लिए गया था तो आज में भी 12 घंटे जानते, जब वहाँ से रुखसत होने लगा तो मालूम होता है कि ऐसा महसूस हो रहा कि कोई चीज़ छूट रही है। कभी बस का इंतज़ार हो रहा तो बस उन लोग कहेंगे बैठिए आप रवाना बस हो गई। कभी सरकार के रोज़े की तरफ देखते थे, कभी बस की तरफ देखते थे और दिल ही दिल में ये दुआ करते थे कि या अल्लाह और ज़िंदगी में एक बार मदीने की ज़ियारत नसीब हो जाए। सुबह तो मैं आप लोगों के लिए मदीने की ज़ियारत आपको नसीब हो जाए दुआ करता। अच्छा ये मतलब मदीना लोग दौलत के बुनियाद पे नहीं जाता है, पैसा है वही जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मदीना अल्लाह के फजलो करम की बुनियाद पर जाता है। अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे। मैं जब 12 हज के लिए गया था तो जिस रूम में मैं था एक आदमी मुअज्जिन साहब थे, मुअज्जिन साहब अररिया के रहने वाले, तनख्वाह थी उस वक्त उसकी 1600 रुपये। तो आपस में बातचीत और कहाँ से आता है, अररिया से, कौन भेजा है। तो जब कहा कौन भेजा है तो वो रोने लगा, बेसाख था, तड़प तड़प के रोने लगा। हजरत ये न पूछो मैं कैसे आया और कौन भेजा, कहा आप बतलाइए। कहा 1600 रुपये मेरी तनख्वाह, उसमें बाल बच्चों की परवरिश भी करना है और ये उस वक्त 1,68,000 रुपये लगता था, अभी तो 4 लाख रुपये लगता है। कहा मैं कैसे आया ये ना पूछिए। मैंने कहा बोलिए क्यों रो रहे हैं, परेशान क्यों हैं। कहा हजरत जब मदीने शरीफ जाने वाला काफिला गुजरता था मैं रो रो के दुआ करता था, मौला जैसे ये मदीने जा रहे हैं, मक्का जा रहे हैं, मेरे लिए भी जाने का कोई रास्ता बतला दे। सुभान अल्लाह, कोई सबब पैदा फरमा। मैं 12 साल से दुआ मांग रहा था, अल्लाह ने सबब पैदा किया। 1600 रुपये तनख्वाह। फजर की नमाज के बाद एक लड़का आया, अमीर घराने का बेटा था, जंजीर खटखटाई, कहा मुअज्जिन साहब पासपोर्ट बनवा लीजिए, वीज़ा तैयार हो जाएगा, मदीने चले जाएगा। कैसी बात करते हैं। कहा मेरे अब्बू ने कहा दादा के नाम से आपको हज्जे बदल करा दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। अगर तड़प हो, बेचैनी हो, आका से सच्ची मोहब्बत हो तो आका अपने गुलाम को जाने का कोई रास्ता निकाल देता है। इसलिए मेरे बुजुर्गों आप सबके लिए दुआ के लिए अशार हैं। हजरत फरमा रहे हैं मौलाना शाहबाज रहमतुल्लाह अलैह के दर के सज्जादा नशी का ये शेर है, क्या फरमाते हैं कि ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, कहिए आमीन। आमीन के माने अल्लाह कबूल फरमा ले, अल्लाह कबूल फरमा। मैं दुआ करता हूँ आप कहिएगा आमीन। तो इस हर 40 में एक वली होता है, मतलब कि 40 साल तो हो जाएंगे, जितने लोग बैठे हैं 40 तो हो ही जाएंगे, 40 हो जाएंगे इंशाअल्लाह, सब मिला के माँ बहनों को मिला के तो 40 हो ही जाएंगे। हर हदीस शरीफ में हर 40 में एक अल्लाह का वली हुआ करता है। तो मैं दुआ करता हूँ कौन वली है ये अल्लाह उसके रसूल को मालूम है। बहुत सारे लोग वली होते हैं उनको भी पता नहीं होता है, और हर वली 40 में एक अल्लाह का वली, इसलिए कहा कि जनाजे में कम से कम 40 आदमी हो, तो ये 40 आदमी जब होता है तो उसमें से एक अल्लाह का वली होता है, दुआए मग़फ़िरत फरमाता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो मैं दुआ करने जा रहा हूँ, आपको कहना है आमीन। ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, कहिए और जोर से पढ़ दीजिए। जब मैं कसूरा शरीफ जाऊँगा तो आपको मैं अपने मखदूम की बारगाह में अर्जी पेश करूँगा। जब मौलाना शहबाज सरकार की बारगाह में जाऊँगा तो अर्जी पेश करूँगा। सरकार आपके अशार को मैं दोहरा रहा था, वहाँ के गुलाम आमीन कह रहे थे, मदीने जाने का कोई रास्ता निकाल दीजिए। सुभान अल्लाह। तो मैं फिर कहने जा रहा हूँ, तो आप इतनी आवाज़ से कहिए आमीन कि आपकी आवाज़ यहाँ से टकराती हुई मोहल्ला चक होते हुए, किचोचा शरीफ होते हुए, अजमेर शरीफ होते हुए, बगदाद होते हुए मदीने पहुँच जाए।
ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں. آپ ٹھنڈے ہو گئے, آپ گرم ہوئیے گا تو میں بھی گرم ہو جاؤں گا. تو بولیے گا ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں, سرکار ہوں ہم سب ہوں ایک ساتھ مدینے میں. کتنا اچھا لگے کہ سرکار ہوں ہم لوگ ساتھ ہو, میرے سرکار کا روضہ ہو. ایسی بھی گزر جائے. اس کو ترنم سے سنا دیں. حضرت ترنم سب جیسے ابھی شہنشاہ ترنم نے ابھی پیش کیا کہ الحمدللہ اللہ نے ان کے ساتھ ایک خصوصیت صفت عطا فرمائی, نعت پڑھتے مگر تھکتے نہیں ہیں. یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. ہمیشہ مولانا اشتیاق رہبر بھاگلپور جہاں جاتے ہیں اپنی چھاپ چھوڑتے ہیں. اللہ نے یہ نعمت عطا فرمایا ہے. تو ترنم ویسا ترنم تو نہیں ہے, ویسی آواز سے نہیں ہے, مگر جو بھی ہے اسی آواز سے میں پڑھنے جا رہا ہوں. کہ ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے, ایک رات مدینے میں, ایسی بھی یا رسول سرکار ہو ہم سب ہو ایک ساتھ مدینے, سرکار ہو ہم سب ہو ایک ساتھ مدینے میں, ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں. اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیے, آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. کہ سنتے ہیں کہ آقا کی زنبیل محبت سے, سنتے ہیں کہ حسنین کی بٹتی ہے خیرات مدینہ, کی بٹتی ہے خیرات مدینے میں, ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں, سرکار ہو ہم سب ہو ایک ساتھ مدینے میں. مدینے والے آقا کا کتنا بڑا کمال, پوری دنیا میں سارے سنسار میں 18,000 مخلوقات میں جو میرے نبی کا جلوہ ہے, کسی نبی کا جلوہ نہیں ہے. سبحان اللہ, یہ میرے نبی کی شان ہے. اس لیے ہم لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم محمدی ہیں. کہیے زور سے الحمدللہ ہم لوگ محمدی ہیں. اور سب کو یہ للکارتے ہیں, ہر طاقت کو جھنجھوڑ کے, ہر امریکی جیسی طاقت کو للکار کے یہ آواز دیتے ہیں کہ ہم حضرت نوح کو موج طوفان سے کنارہ مل گیا, حضرت موسیٰ کو لطف نظارہ مل گیا, الغرض ہر ایک بیچارے کو چارہ مل گیا, ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا. سرکار
ساتھ مدینے میں ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں. ہم لوگ عشق رسول کی بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج ہو کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کی عظمت کو سلام, آپ کی شوکت کو سلام, بڑے رتبے والے نبی ہیں, اولو العزم پیغمبر میں آپ ہیں, مگر آپ کی عظمت کو سلام, مگر میرے نبی کی جب بات آئے گی تو آپ بھی سن لیجیے. موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج ہو کر موسیٰ اللہ کے جلووں کی برسات مدینے, اللہ کے جلووں کی برسات مدینے میں ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں سرکاری ہو ہم سب ہو ایک ساتھ مدینے میں. اور آخری من سماعت فرمائیے, کہتے ہیں زور سے سبحان اللہ. مرنا تو سب کو ہے, ہر انسان کو. اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر جان کو موت کا, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ آپ سب کو لمبی عمر عطا فرما دے. آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی ہمارے علماء کرام کو لمبی عمر عطا فرما دے. مگر وہ موت کتنی اچھی ہو کہ انسان کی روح نکلے اور میرے سرکار کے روضے کی چہرے اقدس کی زیارت نصیب ہو جائے. حضور کا سودا شریف میں حضرت جانتے ہیں فقیرہ بابا سید امیر ملت صاحب, ان کے ساتھ 2 سال میری ابتدائی تعلیم پہلی فارسی سے لے کے گلستہ تک انہیں سے میں نے پڑھا. بہت بڑی ہستی ہے کہ چھوٹا شریف میں فقیرہ بابا سے مشہور ہیں, اور سید امیر اشرف جو سرکار کلا کے داماد لگتے ہیں, بہت بڑا مقام. آپ فرماتے تھے اگر کچھ ہے, اگر میری زندگی میں اگر کچھ ہے تو بس یہ ہے تمنا آخری اپنی کہ وہ ساحل پہ ہوتے اور کشتی ڈوبتی اپنی. اور آگے فرمایا یا رسول اللہ اگر کچھ ہے تو بس یہ ہے تمنا آپ سے اپنی کہ جس کشتی پہ تم ہوتے وہ کشتی ڈوبتی اپنی. یا رسول اللہ جس وقت میری روح نکلے آپ سامنے موجود ہو, روح نکل جائے سمجھو کہ بیڑا پار ہو جائے. سبحان اللہ. حضرت فرماتے ہیں گزر جائے ایک رات مدینے میں سرکار ہو ہم سب ہو ایک ساتھ مدینے میں. سرکار مدینہ کو جو دل میں بسا لے گا, سبحان اللہ, جو دل میں بسا, آپ لوگوں نے دل میں بسایا ہے, اللہ اس دل کو سلامت رکھ کے نور سے بھر دے. کہیے سبحان اللہ. سرکار مدینہ کو جو دل میں بسا لے گا وہ کفر کے نرغے میں بھی ایمان بچا لے گا, وہ کفر کے نرغے میں بھی ایمان
ایمان بچا لے گا، یہ سچ ہے کہ وہ اپنی بینائی بچا لے گا جو خاکے درے طیبہ کو آنکھوں میں لگا لے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ سب معاملہ ہے عشق کا، نبی سے سچی محبت ہے، جبھی تو آپ جاگ رہے ہیں، آپ سو سکتے تھے مگر آقا کی محبت میں جاگ رہے ہیں، نعت سن رہے ہیں، نعت سن رہے ہیں۔ آپ نے اچھا یہ بتائیے جتنے بھائی بیٹھے ہیں سب اچھے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، بال بچے کو اچھا لکھے۔ یہ بتلائیے کہ آپ نے اپنے نبی کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ ہم لوگ بھی نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، مگر ابھی جناب اشتیاق رہبر بھاگلپوری نعت پڑھ رہے تھے، جناب مجیب الرحمان صاحب سرکار کی تعریف کر رہے تھے، آپ تڑپ رہے تھے، بے چین تھے، مچل رہے تھے، سبحان اللہ کا نعرہ بلند کر رہے تھے۔ کیوں؟ آپ نے دیکھا نہیں، دیکھا نہیں، مگر سرکار کی جب تعریف ہو، میں بھی دیکھا نہیں، جب تعریف ہوتی ہے دل مچل جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔ بن دیکھے جب یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ جس دن آپ اپنے آقا کو دیکھ لیں گے دنیا کی ساری چیزوں کو بھول جائیں گے، بھول جائیں گے۔ اس لیے ایک بزرگوں نے فرمایا جب حسن تھا ان کے جلووں کا، رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ دیکھا نہیں، تڑپ رہے ہیں یا رسول اللہ، آپ پر ہم اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں، مال کو قربان کر رہے ہیں یا رسول اللہ، میں تو میں، اب میرا پورا خاندان آپ کے قدموں پہ نثار قربان ہو جائے گا۔ دیکھا نہیں، بن دیکھے جب یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے جب یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ادنا کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ ادنا کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ دیکھا نہیں، آپ لوگ تڑپ رہے ہیں، اور صحابہ کرام کی زندگی پر تڑپتے رہے۔ حضور کے چہرے اقدس کو جب دیکھتے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہتے ہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اگر ان کے سر پر گلاس پانی بھر کے گلاس رکھ دیا جائے تو گر نہیں سکتا، معلوم بے چین میرے نبی کی یاد میں کھو جاتے تھے۔ ادب و احترام کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے، صحابہ کرام کی محبت دیکھی، وضو صحابہ کہتے ہیں کس کو ہے؟ جس نے میرے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور اسی پر ایمان پر خاتمہ ہو گیا ہو، اس کو کہتے ہیں کیا؟ صحابی۔ صحابی رسول وضو کے لیے پانی دیا، پانی کا ہر قطرہ زمین پر صحابی رسول حضور کی محبت میں گرنے نہیں دیتے تھے، جیسے پانی گرے فوراً اپنے چہرے پر، کوئی اپنے سر پہ، کوئی اپنے جسم پہ مل لیتا تھا۔ یہ محبت تھی، پاس رہتے تھے، ساتھ رہتے تھے، مگر وضو کا کوئی قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، یہ محبت تھی۔ بڑا ہو چھوٹا ہو جوان ہو، سب اپنے اپنے نبی کی نام پر اپنی جان کو قربان کر دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک جنگ میں لوگوں نے افواہ کر دیا کہ حضور شہید ہو گئے میرے نبی کے بارے میں، وہ عورت پریشان ہو دوڑتی ہوئی آئی، لوگوں سے پوچھا، لوگوں بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے، کہاں میرے آقا، کہاں ہے میرے نبی؟ کہا تمہارے بیٹے شہید ہو گئے، کہا ہو جانے دو، میرے نبی کی خبر بتلاؤ۔ پھر آگے بڑھے، لوگوں میرے نبی کہاں ہے؟ کہا تمہارے شوہر شہید ہو گئے جنگ میں، کہا ہو جانے دو، پہلے میرے نبی کا پتہ بتلا دو، میرے نبی اچھے تو ہیں۔ کہا تمہارے فلاں آدمی رشتہ دار شہید ہو گئے جنگ میں، کہا ہو جانے دو، میں اپنے نبی کی خبر پوچھ رہی ہوں، میرے نبی کی
खबर बतलाओ। किसी ने कहा मेरे नबी बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह, ये है मोहब्बत। बेटा खत्म हो जाए गम नहीं, मेरे सरकार महफूज रहे। सुभान अल्लाह, शौहर खत्म हो जाए गम नहीं, मेरे मगर मेरे सरकार मुझको देखते रहे। जंग बदर इस्लाम की बहुत भारी भरकम जंग, 17 रमजान को इस्लाम की पहली जंग। क्या है वो? जंग बदर है, 17 रमजान को। कितने आदमी थे ईमान वाले? कुल 313 मुसलमान। उधर कितने थे? उधर थे 1000 से ज़ायद। अब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जंग में शरीक है। बहुत शानदार कामयाबी मिली। फिर दूसरी जंग में हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ को कमांडर बना के मेरे नबी ने भेजा कि जाओ काफिरों से जंग करो। अबू जहल लोहे का लिबास पहन के, अबू जहल कौन था? ये मेरे नबी का चचा कहलाता था। अबू जहल, अबू लहब, ये मेरे नबी का चचा कहलाता था। खूनी रिश्ता था, खूनी रिश्ता। रिश्ता दो तरह से होता है, एक खूनी एक ईमानी। जैसे मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन हसनैन करीमैन इमाम हसन मुस्तफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों सगे भाई, ये खूनी रिश्ता है। ईमानी रिश्ता हजरत बिलाल हब्स के रहने वाले, ख्वाजा उवैस कर्न के रहने वाले, मेरे नबी मक्का के रहने वाले, ये ईमानी रिश्ता। जिस तरह से आप दोनों भाई में खूनी रिश्ता होगा, मैं कहाँ से आया हूँ, हम लोग का ये ईमानी कलमा वो रिश्ता है। कहते हैं सुभान अल्लाह। अब दोनों रिश्ते में कौन सा रिश्ता शरीयत की रोशनी में, हदीस की रोशनी में अच्छा है वो सुनिए। तो किताब कहती है न खूनी रिश्ता अच्छा है बल्कि ईमानी रिश्ता अच्छा है। सुभान अल्लाह। इतने बार बैठे हैं, कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया है। हमारे इमाम साहब का, हमारे शायर इस्लाम साहब कहाँ से आए, मैं कहाँ से। ये हम लोगों का ईमानी रिश्ता है। यहाँ भी साथ रहेंगे, क़यामत के दिन भी साथ रहेंगे। तो खूनी रिश्ता, खूनी रिश्ता जरूर था अबू जहल से, मगर न माना। जानता था कि ये ऐसे पैगंबर हैं, उंगली का इशारा फरमा दे तो चांद दो टुकड़े हो जाए। जानता था, पहचानता था कि ये ऐसे पैगंबर हैं, खजूर के दरख्त को पुकारेंगे, खजूर का दरख्त जड़ से उखड़ के इनके कदमों में आके सलाम करना लगेगा। मगर जानता था, पहचानता था, मगर मानता नहीं था। न माना, मगर न माना तो एक काम उसने ऐसा कर दिया जिससे उसका भला भी हो गया। कट्टर काफिर मेरे नबी के लिए तलवार लेके अबू लहब खड़ा रहता था। ये मेरा भतीजा कहता है कि अल्लाह को एक मानो, और ये जो हमारा बाप दादा करता आ रहा है, जो बेजान चीजों के सामने झुकते हैं, कहता है ये गलत है, अल्लाह को मानो, अल्लाह के सामने झुको। मेरे नबी ने कहा नहीं, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। कहा नहीं, हम जो करते हैं यही करने दो। मेरे नबी ने कहा गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। मेरे नबी ने कहा अगर तुम मेरी बात न मानोगे तो हिलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। अबू लहब ने कहा मैं बर्बाद नहीं होगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। अल्लाह ने कहा जिब्रील अब सिदरा पे बैठने का वक्त नहीं है। जिब्रील एक सूरह मुबारका ऐसी नाजिल कर दो कयामत तक ईमान वाले अबू जहल के लिए बद्दुआ करता रहे। तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब, आप नमाज में पढ़ते हैं, बर्बाद हो जाए अबू लहब के दोनों हाथ, टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ। मेरे नबी को एक मरतबा कहा था तुम्हारे बर्बाद, तुम्हारे लिए बर्बादी है, तुम्हारे हाथ टूट जाए। अल्लाह ने कहा जिब्रील जाओ ये सूरत नाज़िल कर दो, क़यामत तक मुसलमान जब जब नमाज पढ़ेगा, जब जब तिलावत करेगा, अबू लहब के लिए बद्दुआ करते रहेगा। आप हम लोग नमाज पढ़ते हैं, नियत मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह के बाद सूरत में जाते हैं, तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब
फी जीदिया हब्लुम मिन मसद। तो इसके क्या माने होते हैं? आपने नमाज पढ़ा, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहे हैं कि किसी के लिए बददुआ कर रहे हैं? नमाज पढ़ा अल्लाह के लिए, तब्बत यदा अबी लहब ने तिलावत शुरू कर दिया। इसके माने हैं टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ, बर्बाद हो जाए अबू लहब के दोनों हाथ। ये नमाज में आप पढ़ रहे हैं, इससे क्या पता चला? चाहे कुछ भी हो जाए, गुस्ताखे रसूल, जब नमाज की गुस्ताखे रसूल जो मेरे नबी का गुस्ताख होता है, चाहे नमाज हो या नमाज के अंदर हो, उसके लिए फतवा करना ये कुरान से साबित है। अबू लहब बर्बाद हो गया, मगर एक फायदा उसका हुआ, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूनी रिश्ता था। जब मेरे नबी मक्का में 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सोमवार के दिन आए, उनकी एक लौंडी रखी सवबिया, और उसको उस लौंडी ने कनीज ने आके कहा, अबू लहब तुम्हारे घर भतीजा पैदा हुआ है। तो खूनी रिश्ता था, खूनी रिश्ते की बुनियाद पर उसने कह दिया कि जाओ तुम भतीजे की पैदाइश की खबर तुमने सुनाया है। ये इस उंगली से कहा कि जा तू आज़ाद है, उसको आज़ाद कर दिया। इसका इतना न मानता था, न पहचाना, न कलमा पड़ा मेरे नबी का। क्या किया था? मेरे नबी की पैदाइश की खुशी में, जश्न विलादत नबवी की खुशी में उसने क्या किया था? एक अच्छा काम किया कि जब उसने अपनी लौंडी को ये उंगली के इशारे से आज़ाद कर दिया। तो जब वो मर गया अबू लहब, तो किसी ने ख्वाब में देखा, अबू लहब तेरा क्या हाल है? का बड़ा बुरा हाल है, कुछ तो बदलाव का। कुछ नहीं, बुरा हाल तो है, मैं उस पैगंबर से दुश्मनी करके मैंने जहन्नम की आग को खरीद लिया है, बहुत बुरा किया। अगर मान लेता तो बहुत अच्छा होता, मगर एक दिन खैरियत हो जाती है। का क्या होता है? का हर सोमवार को ये मेरी ये शहादत वाली उंगली में मिठास पैदा हो जाता है। शहद भर जाता हर सोमवार को किसको? कट्टर काफिर। क्यों? मेरे नबी की पैदाइश की खुशी में अपनी लौंडी को आजाद करने का इशारा किया था। तो क्या हुआ? अल्लाह ने करम किया कि चलो मेरे नबी से इतनी तो मोहब्बत की तुमने कि उसकी उंगली में शहद भर जाता है, हर सोमवार को वो चूस लेता है। उसने कहा कि जब मैं चूस लेता हूँ तो एक हफ्ते के आज़ाब को भूल जाया करता। अब यहाँ पर आपका ज़हन इधर मुतवज्जह होना चाहिए। जब कट्टर काफिर अबू लहब नबी की पैदाइश की खुशी में खुशी का इजहार करे तो उसको कब्र में आज़ाब में कमी हो सकती है। आप तो रसूल के आशिक हो, कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप तो रसूल के दीवाने हो, दीवाने ऐसे दीवाने हो कि दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। आप ऐसे दीवाने हो, आप तो हुजूर की याद में जुलूस निकाला, खुशी में मिलाद किया, खुशी में गरीबों को खिलाया, खुशी में सब कुछ किया, झंडे लगाए, खुशी में कमरे सब सजाए, गली कूचों को सजाया। मेरे नबी की पैदाइश की खुशी में जब कट्टर काफिर सवाब फैज पा सकता है, आप क्यों नहीं पा सकते? सुभान अल्लाह। इसलिए एक बुजुर्ग का शेर है, ज़माने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। ये कायदा है, जिसका खाओ उसी का गाओ। हम लोग अपने नबी के टुकड़ों पे पढ़ते हैं तो किसका गाएंगे? ज़माने भर का ये कायदा है
تشریف لا رہے ہیں اور شب خوشی میں بھی فیض پا رہے ہیں زمان بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اس لیے اللہ نے کہا قل بفضل اللہ اے محبوب آپ فرما دیجئے جب اللہ کا فضل ملے اللہ کی رحمت ملے تو خوب خوشیاں منائیے آپ لوگ خوشیاں منایا خوب خوشیاں منایا گھر میں بڑھیا بڑھیا کھانا کھایا بولیے کھایا کہ نہیں تو خوشی کا اظہار کیا اس خوشی کے اظہار میں آپ نے کھایا غریبوں کو کھلایا تو اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ محنت رنگ لائے گی یہ نہیں سمجھ گئی یوں ہی آپ نے کام کر دیا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے اس ہندوستان میں حدیث کو پھیلا فرماتے ہیں میرا کوئی عمل اس قابل نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے مگر ایک عمل میرا وہ عمل شاندار ہے یہ فرماتے کتاب میں لکھا ہے کوئی عمل ایسا نہیں نماز روزہ حج زکات کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کو پردیاں سے پیش کیا جائے اس لیے کہ نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقاء پر ہے ہمارا نماز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے سبحان اللہ کوئی عمل نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے مگر ایک عمل ایسا ہے وہ شاندار عمل ہے خود فرماتے ہیں مجھ کو یقین ہے کہ وہ میرا عمل بڑا شاندار ہے اللہ کی رحمت برسنے کا ایک ذریعہ ہے وہ عمل کسی نے پوچھا وہ کون سا ہے کہا جب 12ویں شریف کا مقدس مہینہ آتا ہے میں اپنے گھروں میں میلاد کراتا ہوں سبحان اللہ اپنے گھروں میں میلاد کراتا ہوں اور اس کے بعد میلاد کراتا ہوں کھڑے ہو کر حضور پر محبت کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں آپ فرماتے بہت بڑے محقق پورے ہندوستان میں حدیث پھیلانے فرماتے یہی عمل میرا شاندار ہے کہ اللہ نے اگر قبول فرما لیا تو میری زندگی میں 4 چاند لگ جائے گی سبحان اللہ اس لیے کہا گیا تھوڑا ہو زیادہ ہو گھروں میں فاتحہ نیاز آپ کراتے رہیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر فضل فرمائے اور آپ کے سینے کو عشق رسول کا مدینہ بنا دے میرے بزرگوں بس آخری پیغام میں آپ کو نوجوان بھائیوں کو دے کے جا رہا ہوں زور سے کہیے سبحان اللہ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب اللہ صلی علیہ سلامت علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اور وہ جو ثواب جو 1 لاکھ روپیہ کرانے والے کو خرچہ کرنے والے کو ملے گا وہ ہم کو بھی ملے گا بی بی نے جب سمجھایا حضرت عامر انصاری رضی اللہ صحابی رسول کو بڑی تشفی ہوئی کہ بازار تھوڑی سی شیرنی لایا اور کہا بی بی چلو بیٹھ جا صاحب کہا اگر بغل میں ہمارے پڑوس کے اگر وہ آنا چاہیں تو وہ آ جائیں
कवर कर दिया, तो 1-2 आदमी वो भी आ गए, और बाल बच्चा, बीवी, बेटी, बहन सब बैठ गए। कहा तुम भी नात पढ़ो। सब लोग नात पढ़ते थे जी। तलाल बदरो अलैना मिन सनियातिल विदाई वजब शुक्र अलैना माता लिल्लाहि। अरबी में सब नात पढ़ रहे हैं, और नात पढ़ना ये समझिए सहाबा किराम की सुन्नत है, नात पढ़ना चाहिए। ये नहीं समझिए कि हम मौलाना साहब नहीं है, हाफिज जी नहीं है, शायर नहीं, तो कैसे नात नहीं। आप नात पढ़िएगा तो वही सवाब आपको भी मिलेगा। जज्बा रखिए। उत्तर प्रदेश में फैजाबाद में जिला अम्बेडकर नगर में एक छोटा श्री में जहाँ हमारा मकान है, वहाँ लूम लोग चलाता है, लूम कपड़ा जो बुनता है वो भी शानदार नात पढ़ता है। रिक्शा चलाता है वो भी नात पढ़ता है। इसे नबी की नात पढ़ने के लिए शर्माना नहीं चाहिए। किसी चीज को सीखने के लिए पूछने से शर्माना नहीं चाहिए। पूछ के इल्म हासिल कीजिए। इल्म वो चीज है जिंदगी भर बुढ़ापे तक इल्म हासिल करता रहता है। लोग इल्म की कोई इंतहा ही नहीं है। इसलिए सिकंदर बादशाह से लोगों ने कहा इतने बड़े जानकार आप कैसे हो गए, बादशाह बन गए, पूरी दुनिया पर उसने हुकूमत किया। कहा एक चीज से, कहा किस चीज से, कहा जो चीज मैं नहीं जानता था पूछने में शर्म नहीं महसूस किया। सबसे पूछा, नहीं जानते थे, बच्चे से पूछा, बूढ़े से पूछा, जवान से पूछा, सबसे 10-10 बातें रोज सीखता था। अल्लाह ने इतनी बुजुर्गी और इतनी नेमतें अल्लाह ने मुझको अता फरमा दिया। तो सब नात पढ़ना चाहिए। तो बाल बच्चा पढ़ने लगे, नात सुनाने लगे। अब देखिए जवाब, दरवाज़ा बंद है, सब नात शरीफ या रसूलुल्लाह का नारा, मरहबा मरहबा का नारा बुलंद हो रहा है। मेरे सरकार चंद सहाबी को लेकर उसी रास्ते से जा रहे थे। सुभान अल्लाह, क्या शान है। जब किस्मत चमकने लगती है तो अल्लाह कोई जरिया लगा देता है। अब ये मिलाद हो, चंद आदमी है, परिवार के लोग हैं, बाल बच्चा है, बीवी है, शौहर है, बेटा है, बेटी है, सब लोग मिलाद मेरे नबी की पढ़ रहे हैं। मेरे सरकार उसी गली से तशरीफ ले जा रहे हैं। कान में आवाज़ आई कि सरकार की बारगाह में नात शरीफ और तकरीर हो रही है, जिक्र हो रहा है। मेरे सरकार रुक गए। कहा साहब पता करो ये घर किसका है। कहा हुजूर ये हजरत आमिर का घर है, पता करो क्या क्या हो रहा है। दरवाज़ा खटखट का तुम लोग क्या कर रहे हो। कहा हम लोग कम पैसे वाले हैं, जितना हो सका सलाहियत के मुताबिक अपने नबी की मिलाद रचा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे इतना बोल ही रहे थे कि उनके घर में मेरे नबी तशरीफ ले गए। कामिल क्या कर रहे हो। कहा सरकार कदमों में सर रखा मेरे आका, मेरे पास इतनी दौलत पैसा नहीं कि मैं सब 20 आदमियों को बुला के खाना खिलाऊं और मिलाद करूं, मगर शौक है सरकार आपकी मिलाद करूं, आपका जिक्र करूं, अल्लाह रसूल का तज़किरा करूं। वही मैं कर रहा था। अब मेरे नबी, मेरे सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप बताइए जो मैं कर रहा था इसका करना कैसा है। सुभान अल्लाह। अब साहबी ने कहा जब पूछ लेंगे तो मसला बन जाएगा, एक फतवा जारी हो जाएगा। मेरे नबी ने कहा सुनिए, मेरे नबी ने कहा ऐ सहाबियों सुनो, ऐ सहाबियों सुनो जी, जो जो हजरत आमिर ने किया है, अगर कोई बंदा करेगा जैसा कि आमिर ने किया है, जो काम जो फेल आमिर ने किया है, अगर कोई करेगा तो अल्लाह उसको ढेरों सवाब इनायत फरमाएगा। अपने घरों में नियामत फातिहा करते हैं, खूब किया कीजिए ताकि मेरे सरकार करम कर देंगे। रख ही लेते हैं भरम उनके करम के सदके। जब किसी बात पर ईमान मचल जाता है, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। सुभान अल्लाह। करम का इंतजार कीजिए, घबराइए नहीं, परेशानी हो घबराइए नहीं। मेरे आका वो हैं जो आपकी मुसीबत को मिनटों में, चुटकी में ठीक कर सकते हैं। घबराइए नहीं, मगर सच्ची मोहब्बत हो। अपने नबी को याद करो। आपके नबी जानते क्या शान है। मेरे नबी फरमाते हैं पूरी दुनिया को मैं इस तरह से देखता हूँ जिस तरह से हाथ के हथेली को देखा करता हूँ। तो ये आज नौजवानों में आप बड़े खुशनसीब, अल्लाह आपको सलामत रखे, कहिए आमीन। आपके अल्लाह कारोबार में खूब बरकत दे, खूब तरक्की दे। आइंदा साल आप इससे भी ज्यादा
को अता करे। मेरे बुजुर्गों, जब आपने नबी की मोहब्बत में ये रचाया है, मेरे सरकार देख लेंगे तो आपका सीना इश्क़ रसूल का मदीना बन जाएगा। आमीन। आपसे गुजारिश है, गुजारिश करके जितने नौजवान हैं, बड़ी मोहब्बत से आपने मजलिस सजाया है, बड़ा बहुत अच्छा काम किया है। यही काम आपके लिए क़यामत के दिन नजात का, बख्शने का परवाना अल्लाह को अता करेगा, जरिया बनाएगा। मगर एक काम कर लीजिए, लोहा कहाँ सटता है? चंबुक। चंबुक कहाँ सटता है? बोलिए। लोहे में नहीं सटेगा, चंबुक कहाँ सटेगा? लोहा में। चंबुक को आप लकड़ी में सटाइएगा तो सटेगा? क्यों नहीं सटेगा? चंबुक प्लास्टिक में सटेगा? नहीं, चंबुक लोहे में सटेगा, उसमें उसकी कशिश लोहे की तरह वही है। तो मेरे बुजुर्गों, आप खूब करा लीजिए, मगर कम से कम इस काबिल चंबुक बन जाइए कि जब जिक्र हो, जिक्र का फैजान जब चले, वो चंबुक नबी के रहमत में नहा के आपके सीने को मदीना बना दे। सुभान अल्लाह। आपको उस तरह बनना पड़ेगा, उस तरह से आपको बनना पड़ेगा। कैसे बनेगा? आप ऐसा बनिएगा कि कम से कम बंदगी का माथा परवरदिगार आलम की बारगाह में फेंक दीजिए। जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी बात को छोड़ के बेचारे तो ज़िंदगी गुजारना था, गुजार लिया। मगर नौजवान, आप एक मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने वाले हो, किस्मत को चमकाने वाला। आप चाहोगे तो हो सकता है। नौजवानी तो सब काम करता है, बूढ़े क्या करते हैं? शेख सादी रहमतुल्लाह गुलिस्तान में फारसी में लिखते हम लोग पढ़ाते हैं फारसी, तो उसमें लिखा है कि जवां गोशा नशीन शेर मर्द राह खुदा अस्त के पीर खुद न तवानत से गोशे बरखार। जवान अगर गोशा नशी इख्तियार करता है, जवान अगर इबादत करता है, जवान भलाई करता है, एक फैंक किसी को मार सकता है ना मारे, किसी पर जुल्म कर सकता है ना करे। जानते हैं अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, वो जवान अल्लाह के रास्ते का शेर मर्द है। सुभान अल्लाह। बुराई कर सकता है, सिनेमा देख सकता है ना देखे, ताश खेल सकता है ना खेले, जुआ खेल सकता है ना खेले। मेरे नबी फरमाते हैं वो जवान अल्लाह के रास्ते का शेर मर्द है। कहते हैं सुभान अल्लाह। शेर। नौजवानों से मुस्तकबिल को, फ्यूचर को कामयाब बनाना है तो आपको थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ेगी। क्या तैयारी करनी पड़ेगी? और ये दुआ करनी पड़ेगी कि मेरे अल्लाह बदले का नज़ामे गुलसिता कब तक रहेंगे फूल खारों में। हुजूर सैयद मुजफ्फर हुसैन एमपी के चौधरी साहब फरमाते हैं, रावर साहब कि मुजफ्फर हुसैन के चौधरी कहाँ थे गए आप? रावर इस्लाक साहब, उनका शेर है कि जब उनको लोगों ने कहा कि क्या हो रहा, कहा सुनो ये शेर भी याद रखो, मेरे अल्लाह बदले का नज़ामे गुलसिता कब तक रहेंगे फूल खारों में। नसीबे दुश्मना कब तक, कभी तो राहते मंजिल मेरे हिस्से में आएगी, मुझे धोखे पे धोखा देगी करने कारवा कब तक। मुसलमान दिखा दे दौर फारूकी का एक मंजर, रहेगा कुछ को यूं अंदेश है सूदों से ना कब तक। मेरे अल्लाह बदले मौला से दिल लगा ले। बस इतने करना आपको, जलसा जुलूस करने के बाद मौला से दिल लगा दीजिए तो इंशाअल्लाह सारी दुनिया आपके पास आ जाएगी। अजमेर शरीफ वाले आका ने मौला से दिल लगाया, पूरे हिंदुस्तान के लोग वहाँ जा रहे हैं कि छोटा शेख हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमरानी का आस्थाना 40,000 लोग रोजाना पहुँचते हैं, फैज पाते हैं। अल्लाह से दिल लगाया तो कायनात उनके यहाँ झुक रही है। खुदा
जमीन का टुकड़ा जो छोटा सा घर है, अल्लाह उस घर को रहमत से, नूर से भर दे हम लोग। वही आप वो जिंदगी, कब्र वाली जिंदगी अच्छी हो जाए, फिर तो मैदान हशर में देख ही लिया जाएगा। मेरे सरकार जिसकी आप मिलाद कर रहे हो, जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मेरे सरकार सजदे में जाएंगे, मौला मेरी उम्मत गुनहगार, मेरी उम्मत सियाहकार, इनके गुनाहों को माफ फरमा दे। मेरे नबी रो के पत्थर के नोकेले जगह पे पेशानी को रख लेंगे, मौला माफ फरमा दे मेरी उम्मत के गुनाहों को। अल्लाह फरमाएगा, महबूब सर को उठाओ, जो चाहो मांगो, तुमको अता किया जाएगा। सुभान अल्लाह। जाओ, इतनी उम्मतियों के गुनाहों के गुनाह माफ किए, उठाओ, फलां कबीले में जितनी बकरियां हैं, बकरियों के जिस्मों पर जितने बाल हैं, बाल के बराबर बख्श दिया, आपको उठाओ, कहा मौला और बख्श दो। आवाज आई, जाओ, जिसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत होगी, ईमान का जज्बा होगा, वो कभी दोज़ख में नहीं बल्कि वो जन्नत में ही जाएगा। सुभान अल्लाह। आप रसूल से मोहब्बत रखते हैं, रसूल की मोहब्बत ही का नाम ईमान है। कहते हैं सुभान अल्लाह। रसूल की मोहब्बत है, नमाज पढ़ते हैं तो उसमें अल्लाह चमक पैदा है। रसूल की मोहब्बत है, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, खिदमत करो, और सबसे पहला पैगाम अल्लाह की इबादत के बाद माँ बाप की खिदमत कर लो। कह दिए सुभान अल्लाह। माँ बाप की खिदमत करना, जानते हैं हदीस शरीफ में आया है कि जो बेटा माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से देखता है, उससे हज्जे मबरूर का सवाब दिया जाता है। सुभान अल्लाह। जी, इसलिए माँ बाप, आपकी माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बाप के कदमों के नीचे जन्नत का दरवाजा। कोई भी काम कीजिए, अगर माँ बाप नाराज हो, आपका काम नहीं बनेगा। माँ बाप अगर झगड़ा भी करे, माँ बाप की अगर गलती समझ में भी आए, आपको कुछ नहीं कहना, कुरान में उफ न करो, आप छोड़ दो अल्लाह पर, मगर माँ बाप की कद्र करो, खिदमत करके आप कदम बढ़ाइए। कसम खुदा की, आप घर कामयाब होके लौटेंगे। माँ बाप के कदमों को चूम के जब घर से बाहर जाएंगे कमाने के लिए, आपका जेब पैसे से, नोट से भरा मिलेगा और कामयाबी मिलेगा। अल्लाह रोजी रोटी का जरिया बना देगा। कहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है। हज़रत शहबाज ज़िया शहबाज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी अना का भी सागर खंगाल दे अल्लाह। कहते हैं सुबह आमीन। मैं दुआ करने जा रहा हूँ, आप कहिएगा आमीन। अल्लाह जितने भाई बैठे हैं सबके सीने को मदीना बना दे, सबकी जान माल की हिफाजत अता फरमा। ये शेर में आपको आमीन कहना। मेरी अना का भी सागर खंगाल दे अल्लाह, शराब इश्क़ नबी इसमें डाल दे अल्लाह। मेरी ज़बान को सानूर अलिफ से तर करके मेरे ख्याल को हामीन डाल दे अल्लाह। न मैं जिब्रील हूँ न सिदरा है जामिरी, मुझे हम सबको हुजूर के कदमों में डाल दे अल्लाह। आइए खड़े होकर हुजूर की बारगाह में सलात व सलाम करें।